بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی آئی سائٹ اگر ویک ہے تو اس کے لیے اب مسئلے کی بات نہیں ہے. مسئلہ اس لیے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جائیں جی ایک لیزر کرائیں, 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہے, آپ کی آئی سائٹ واپس ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد ظاہر لوگ احتیاط. اچھا لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اب اس آپشن کو اویل نہیں بھی کر رہے ہوتے. مے بی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہوں یا مے بی ان کے اندر صرف ایک ڈر بھی ہو. تو اسی والے سے آج بات کریں گے. اور اکثر ویسے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کروانا چاہتے ہیں لیزر اپنی آنکھوں کا تاکہ میری نظر ٹھیک ہو جائے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھ پر لیزر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہے, بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں جو خواہش تو رکھتے ہیں, فائنینشلی بھی وہ اسٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ ذرا ایک فائنینشیل کاسٹ اٹیچ ہے پروسیجر کے ساتھ, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کروا نہیں سکتے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بارڈر لائن آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جن پہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم ان ساری قسموں پر بات کریں گے. آپ میں کال بھی کر سکتے ہیں اس سے متعلق کوئی اگر سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو. ہمیں جوائن کریں ماہر نظر چشم ڈاکٹر عبدالحنان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان میں کون کون سی ٹیکنالوجی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اور کتنے قسم کے لیزرز ہوتے ہیں؟ جو ٹیکنالوجیکلی دنیا میں 4 آپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. جو ریفریکٹیو لیزر سرجری جس کو RLS کہتے ہیں, اس میں جب سے پرانی آپشنز جو ابھی بھی افیکٹیو ہے دیٹ از کالڈ PRK. اوکے. اور اس کے بعد اسی کی ماڈیفیکیشن ارلی 2000s میں ٹرانزیشنل PRK ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد فیمٹو لیسک اور لیٹسٹ از ریلیکس اسمائل. تو یہ چاروں آپشنز پوری دنیا میں بھی اویلیبل ہیں اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کس آپشن کو اویل کر رہے ہوتے ہیں, کون سی سب سے زبردست ہے؟ سب سے زیادہ لوگ اویل کرتے ہیں فیمٹو لیسک کو. اوکے. بیکاز وہ کاسٹ افیکٹونیس کے حساب سے بھی ٹائٹریٹڈ ہے, اور اس کی ریکوری ٹائم از امیزنگلی گڈ. کتنا ریکوری ٹائم؟ یوزلی ود فار ایگزامپل اے نمبر آف 3 to 4 ڈائیopters, یعنی 3 اور 4 کا اگر مائنس کا نمبر ہے تو پیشنٹ یوزلی 8 to 9 hours میں ہی از ویری کلوز ٹو 6. اوکے. یس. اچھا اب اس میں جتنی آپ نے بتائیں 4 PRK یس اینڈ ٹرانس PRK اینڈ دین فیمٹو اینڈ دین اسمائل, کیا اس میں صرف کاسٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے یا کہ سم ٹائمز جو آپ کی نظر ہے, جو آپ کی آنکھ ہے, وہ بھی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا آپ پہ یہ پروسیجر ہوگا؟ یس, اس میں کاسٹ از ڈیفینیٹلی ون آف دا فیکٹرز, بیکاز جو پرانی ٹیکنالوجیز ہیں PRK اور ٹرانس PRK دے آر ریلیٹیولی چیپر, اور جو فیمٹو لیسک اور اسمائل ہے دے آر مور دین ڈبل دا پرائس آف PRK اینڈ ٹرانس PRK. اس کے علاوہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از دا تھکنیس آف یور کارنیا. اوکے. کیونکہ یہ کارنیل بیس سرجریز ہیں, مطلب فرنٹ آف یور آئی کارنیا, اس کی تھکنیس بہت ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. فیمٹو اور اسمائل کے لیے یو نیڈ ویری تھک کارنیاز. PRK ٹرانس PRK میں تھن کارنیاز میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نئی ٹیکنالوجیز, نیور ٹیکنالوجیز ود ویری لیس کمپلیکیشن رسک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یو نیڈ ویری تھک کارنیاز. نہیں, بٹ کیا یہ پیشنٹ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اچھا مجھے اس پہ جانا ہے, یا کہ ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اف آپ کا کارنیا از تھک انف کہ آپ کے پاس چاروں آپشنس اوپن ہیں, دین از پیشنٹس چوائس. اوکے. بٹ اف آپ کا کارنیا اتنا تھک نہیں ہے دین آف کورس فیمٹو اسمائل آؤٹ ہو جاتی ہیں, تو آپ کے پاس یو لیفٹ ود اونلی PRK اینڈ ٹرانس PRK. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کاسٹ کی ایک فیکٹر ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ جو پرانی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کاسٹ جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے پاکستان میں بھی. تو کیا صرف ریکوری ٹائم میں فرق ہوتا ہے یا پھر ریزلٹ میں بھی فرق ہوتا ہے اگر آپ پرانی ٹیکنالوجی کے تھرو کرواتے ہیں لیزر؟ گراسلی اسپیکنگ ریزلٹس تقریباً ان چاروں آپشنس کے برابر ہی ہوتے ہیں, سیم ہوتے ہیں, بٹ اٹس ہاؤ یو گیٹ دیئر جس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. صحیح. ان کا کمپلیکیشن ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے. PRK کا زیادہ تھا, ٹرانس PRK کا کم, فیمٹو لیسک کا امیزنگلی کمپلیکیشن رسک از ویری ویری لیس, اور اسمائل کا بھی اسی طرح کم ہے. تو اس وجہ سے نا آپ یہاں سے پوائنٹ A سے پوائنٹ B پہ پہنچ جائیں گے ان چاروں میں, لیکن گاڑی کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹی گاڑی ہوگی, کوئی SUV ہوگی, اور کسی میں کھڈے میں لگ کے جائیں گے, کسی میں سیدھا جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز کی آپ نے بات کی, بہت سارے لوگ ابھی دیکھیں ایک ڈر تو لوگوں کے اندر ہے کیونکہ ظاہر نظر کی بات ہے, آئی سینسیٹیو بھی کافی ہوتی ہے, تو لوگ بڑا احتیاط کر رہے ہوتے ہیں بے شک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی طرف بھی جائیں. کیا کمپلیکیشنز ہیں اور کیا پوسٹ لیزر بھی کوئی کمپلیکیشنز سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے اور اب رہ گیا؟ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ڈرائی آئی جو ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں. کمپلیکیشنز بائی اینڈ لارج ان چاروں آپشنس کی بہت کم ہوتی ہیں. دے آر ون آف دی موسٹ سیفسٹ سرجریز ان آپتھمالوجی اور جنرلی اینی فیلڈ آف میڈیسن. دے آر ویری ویری سیف. ان کی سیفٹی پروفائل از ابو 90%, اور اس میں بھی جب آپ چاروں آپشنس میں جاتے ہیں تو 90 سے بھی اوپر سیفٹی پروفائل جاتی رہتی ہے. کمپلیکیشنز آر ویری ریئر, اور وہ PRK ٹرانس PRK میں ریلیٹیولی زیادہ ان کی اکرنس ہے ایز کمپیئر ٹو فیمٹو اور اسمائل.
कॉम्प्लिकेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है वो ये है कि नंबर आपका ओवर एंड अंडर एस्टिमेट अगर हो जाए तो आपका ये एक कॉम्प्लिकेशन है, बट इनमें एलिमेंट ऑफ क्या मतलब रिपीटेबिलिटी. ओवर एंड अंडर एस्टिमेट? For example, if you're planning to remove 3 diopters out of your eyes, we might remove 2.5 because 0.5 रह जाएगा. मतलब वो 0.5 रह okay. जाए. कहीं ना Exactly. कहीं कॉम्प्रोमाइज विजन Yes. हो वो सकता है. ये डॉक्टर की गलती से होगा. No, ये सारी machines ना डाटा को कैलकुलेट कर रही होती है. अच्छा. So it is purely mathematical. So डाटा में कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, but this is again very rare. ओके. वेरी रेयर. और उसमें भी अगर 1% आपका नंबर कोई रह भी जाए तो देयर इज एलिमेंट ऑफ रिपीटेबिलिटी इन दीस सर्जरीज. अच्छा. आप रिपीट दोबारा दोबारा हो करवा सकती है. सकते हैं. एक Exactly. कॉलर भी है हमारे साथ, याहिया साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब, कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे? वारिस साहब गुड मॉर्निंग. मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको दीदे बीना दे, आंखें तो सबकी होती हैं, लेकिन देखिए. अच्छा, ये मेरा सवाल डॉक्टर साहब से, क्योंकि वक्त मुख्तसर, मैं सवाल डॉक्टर से करने. डॉक्टर साहब देखें, बात ये कि हम, जैसे हमारी बहन ने फरमाया कि एक खौफ होता है लेजर सर्जरी का और वो लोग उससे इसकी वजह से नहीं कराते क्योंकि इसमें बड़ा प्रिसाइज, बड़ा यानी होता है करने के लिए. तो इसके एक्सपर्ट होना कितना जरूरी है. और दूसरी बात है कि अगर मैंने सर्जरी कराई, अच्छी सर्जरी, मुझे उन्होंने कहा यूके का लेंस है तो मैंने लगवाया, लेकिन हाउ कैन वी गेट के अगर ये लेंस जो हम लगा रहे हैं, जो हम इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है. एक तो ये सवाल. दूसरा सवाल ये है कि हमें अपना पीरियोडिक जो है, हम जब एंड पे पहुंचते हैं ना तो बाज़ वक्त हमारी कॉम्प्लिकेशन, हमें पीरियोडिक आई टेस्टिंग कितने अरसे बाद करानी चाहिए. दिस माय क्वेश्चन. उनके सवाल बेसिकली रिफ्रैक्टिव लेज़र से नहीं है, कैटरेक्ट सर्जरी से है. कैटरेक्ट सर्जरी में इनका था कि हम लोगों को लेंस डिसाइड करते हुए या सर्जन डिसाइड करते हुए क्या चीज़ें सोचनी चाहिए. तो बाय एंड लार्ज आप लोगों को 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए. एक तो किस तरह का लेंस आप डलवा रहे हैं, उस लेंस के बारे में यू कैन ऑलवेज गो ऑनलाइन एंड चेक कि वो किन किन कंट्रीज़ में एज अ स्टैंडर्ड लेंस यूज़ हो रहा है. वाकई यूके या उमरकोट से है? यस, एग्जैक्टली. और दूसरा, जिस सर्जन को आप चूज़ कर रहे हैं, यू शुड नो कि वो किस इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, उसका एक्सपीरियंस कितना है. काफ़ी सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं जिनका एक्सपीरियंस काली दाढ़ी वालों से कम होता है. तो इस वजह से आपको चूज़ करते वक्त ना कि किस से चूज़ कर रहे हैं. जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसका थोड़ा सा ये वुड बी मोर तो आप एक्सपेंसिव. बड़े केयरफुल रहें अगर आप करवा रहे हैं Yes, अपना yes. लेजर या आंखों के लिहाज से. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी करवा रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. Exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, किस एज से किस एज तक लेजर हो जाता है? क्या बच्चों पर भी हो सकता है ये? इस लेज़र की लोअर लिमिट है एज के लिहाज से, अपर लिमिट नहीं है. लोअर लिमिट में आपकी ग्रोइंग एज में दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज एज यू आर ग्रोइंग द आई बॉल साइज इज ऑल्सो चेंजिंग. ठीक है. तो इस वजह से आपका नंबर भी चेंज हो जाता है. तो जब आपका कद बढ़ना बंद हो जाए, आई बॉल का साइज स्टेबलाइज हो जाए, उसके भी 2 साल के बाद आपका रिकमेंडेड है. तो लड़कियों में यूजुअली अराउंड 18 to 19 एंड लड़कों में 20 से 21. ठीक है, मतलब 20s में अगर आप करवाते हैं तो वो Yes, ज्यादा yes. रिकमेंडेड होता है. अच्छा, Exactly. वैसे क्या ये होता है जैसे दूर की नज़र के लिए अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी करीब की नज़र के लिए फिर भी ग्लासेस लगानी पड़ेंगी आपको? करीब की नज़र का मैकेनिज्म इन लेजर्स में ट्रीट नहीं होता. दिस इज़ वेरी डिफरेंट. करीब की नज़र एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि आई एम 36, 4 साल बाद मुझे भी लगेगी. ठीक है. मेरे वालिद साहब भी आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको 30 साल से लगी हुई है. तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म. वो हर जिंदा इंसान को लगनी है. एक सवाल जो है वो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा आ रहा होता है और वो लोग ये पूछ रहे होते हैं, क्या ये लाइफ टाइम होता है? दोबारा से भी क्या आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है अगर आपने एक दफ़ा लेज़र करवा लिया तो? अब ये लेज़र्स क्योंकि एक रीसेंट डेवलपमेंट है तो इनमें आपका जो डाटा मौजूद है वो 10 से 15 साल का डाटा है. सही. तो 10 से 15 साल में इनकी नंबर की रिग्रेशन यानी नया नंबर आने के चांसेस आर लेस देन 3%. ओके, मिनिमल है काफी. मिनिमल है. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में बहुत से पेशेंट्स हम ये देखते हैं जो कि ये कंप्लेंट आपने कहा लेस देन 3% है, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने करवाया था लेकिन आज भी हमें ग्लासेस लगी हुई हैं. फिर डॉक्टर कहते हैं कि शायद आपको नहीं करवाना चाहिए था. ये जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं इनके हवाले से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अच्छा हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, और कुछ केसेस बड़े कंफर्म होता है कि नहीं आप काम करेंगे 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. ये क्या मामला होता है? आपकी कॉर्निया में ना बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के हिसाब से आप नंबर को निकालते हैं. तो अच्छा. मतलब इसमें इतना डाटा मौजूद है कि इसमें एक मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निकालते हैं, इसीलिए इसका सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई. राइट. बॉर्डर लाइन केसेस वो होते हैं जहाँ पे आपने ना सेफ्टी प्रोफाइल के बॉर्डर तक पहुँच गए हैं और फिर भी थोड़ा सा नंबर हमें छोड़ना पड़ रहा है. इसको पार्शियल रिमूवल कहते हैं. उसमें हम मरीज़ की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं. उन्हें हम समझाते हैं कि पर्पस ऑफ दिस सर्जरी इज़ नॉट टू मेक यू 6'6", इट इज़ टू मेक यू इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्लासेस. ओके. अगर आप 0.5, 0.75 इतना रह जाएगा. 0.5, 0.75 नेचुरली
90% परसेंटाइल ऑफ द पेशेंट्स में वैसे भी एग्जिस्ट करता है. सही. Nobody is naturally 6'6". ओके. वो लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ग्लासेस. इवन आई एम 0.5 and 0.75 बट प्रैक्टिकली आई एम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्लासेस. सही. तो लोग 6'6" के चक्कर में इंडिपेंडेंस को भूल जाते हैं. तो ये ज़ाहिर है मैनेजेबल है. आयशा है लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे आयशा? वालेकुम सलाम. मुझे पूछना है कि मेरी एक आंख में सफ़ेद मोतिया है, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं कि उसका लेज़र ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होता है और कितनी ड्यूरेशन तक वो कामयाब रहता है. ठीक है जी डॉक्टर साहब. कैटरेक्ट सर्जरी एक डिफरेंट डोमेन है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव लेजर सर्जरी. कैटरेक्ट एक पैथोलॉजी है जिसमें हमें आंख के अंदर जाके सर्जरी करनी पड़ती है. Okay. मोतिये का ऑपरेशन जो बाय एंड लार्ज लेमैन टर्म में हम लोग बोलते हैं. इसमें अगर मोतिया है और आपकी विजन वो सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है तो तब आपको करवा लेना चाहिए. इसमें अर्जेंसी नहीं होती. ओके. अगर कुछ लोग कहते हैं कि मोतिया फट जाएगा या कोई आंख में और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, मोतिया नहीं फटता. कोई ऐसी आंख में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. इस मोतिये को आप ये अगर कल सुबह जाके करवाती हैं या 1 साल के बाद भी कराती हैं, द रिजल्ट्स वुड बी द सेम. ओके. वो दोज रिजल्ट्स वुड लास्ट हर द लाइफ टाइम. ठीक. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, दोबारा नज़र की तरफ आते हैं और उस हवाले से भी बात करेंगे. कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या ये भी आंख को किसी तरह से मुतासर करते हैं? क्योंकि अक्सर लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास कि जी वो लेज़र करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे होते, तो कहते हैं जी आपने लेंसेज का इस्तेमाल किया था उससे कॉम्प्लिकेशंस हो गई आंख में. तो क्या ये भी वो कहते हैं कि सरफेस को डैमेज कर देता है लेंस. एग्जैक्टली. अब जो मरीज़ हमारे पास आते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, फाइनेंशियली भी दे आर स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम उनको मना कर देते हैं आपके लिए आंख में सेफ़ नहीं है. उनमें से 70% ऑफ द पेशेंट्स वो होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस खुद लगा के अपने कॉर्निया को डैमेज करके इतना थिन कर देते हैं कि उनका नंबर फिर निकाल नहीं सकते. ओके. कोई मरीज़ मेरे से अगर पूछता है कि मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराना चाहता हूँ तो मैं उसे यही कहता हूँ कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो आज से अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज छोड़ दें, नहीं तो आपकी आगे मुस्तकबिल में आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी के ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे. अदरवाइज भी नहीं, लेजर जो लेंस है वो डैमेजिंग है. यस. ओके. चाहे वो नजर का है चाहे वो कॉस्मेटिक है, वो डैमेजिंग है. यस. एक और कॉलर है अजहर हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे अजहर साहब? जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ. जी जी जी, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि मैं ना ड्राइव करता हूँ और मेरे ना आंखों के आगे जाला से नजर आता है. हेलो. जी जी बताइए जी, जी. बताइए. और ना मेरा अक्सर सर जो है ना वो बहुत दर्द होता है, तो इस बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें. ठीक है. इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें एक और कॉलर शामिल करते हैं. हारिस साहब भी हैं. हारिस साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो उसकी वजह से मेरी आईसाइट पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है. तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि इसका क्या हल है कि आईसाइट मेरी. ठीक है सर, दोनों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा. जी, पहले अजहर साहब फ्रॉम लाहौर. अजहर साहब ड्राइव करते हैं तो रात के टाइम अगर इन्हें पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होता है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स. या तो आपकी आंखें बहुत ड्राई हो रही हैं, उसके लिए आपको आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ेंगे या अपनी कुछ आदतें ठीक करनी पड़ेंगी. मतलब नींद को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, तो तब ये इश्यूज आपके ख़त्म हो जाएंगे. और दूसरा, हमेशा जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको अपनी आई साइट लाजमी चेक करानी चाहिए. कुछ ना कुछ एज जैसे बढ़ती जाती है, नंबर्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं. और जो सेकंड हमारे कॉलर हैं उन्होंने डायबिटिक हैं और उनको साथ विजन में भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो मैं सब स्पेशलिस्ट हूँ रेटिना का, जिस पे शुगर की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है आँखों में. तो जब भी इस तरह का मरीज़ आता है और इस कंप्लेन से आता है कि डायबिटीज़ मेरी अनकंट्रोल्ड है और मेरी विजन डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उसकी पुतली को यानी प्यूपल्स को डायलेट करके उनका पीछे से नूर का पर्दा रेटिना को हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि उसमें कोई इशू तो नहीं है. इस इशू को हम लोग बड़ा अर्जेंटली एड्रेस करते हैं क्योंकि इसमें विजुअल रिकवरी के चांसेस कम होते हैं. देखा जाता है कि डिटैच तो नहीं हो रहा, वो डिटैच नहीं हो रहा, उसमें लीकेज तो नहीं हो रही, उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही. इसलिए चेकअप बहुत अहम होता है. बहुत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे इस अहम मौजूद पर गुफ्तगू कर रहे थे.